Assalamu alaikum everyone. So today we are going to discuss the topic of body language in presentation. Uh, we have already discussed this topic at length कि किस तरह से आप अपनी body language को अपनी advantage के लिए use कर सकते हैं when you are giving presentations. But still there are certain points which you may want to keep in mind when you are attempting a question in examinations. So how to enhance the most critical aspect of your presentation, which is your body language. Okay, so non-verbal communication is very powerful and it can reinforce your verbal message or contradict it. Like if you are talking about something which is very positive, लेकिन आपकी close body language हो या आपकी तरफ से negative body language हो, तो उसकी वजह से आपका पूरा वो जो message है that may be affected. तो इसमें कौन कौन सी चीजें आपकी body language में काम करती हैं या बहुत important हैं, वो हम briefly discuss करेंगे. What is important here is ये आप लोगों ने handout completely खुद से पढ़ना है, cover करना है. I'll just be highlighting some important points because this is 5 pages and it's very simple and we have already discussed many things in class. Still some points के जो important भी हैं आपकी अपनी learning के लिए वो यहाँ पे highlight होंगे. Posture, first point. Posture क्या है? The way you stand. किस तरह से आप straight जब खड़े होते हैं तो आपके shoulders की क्या position है, आपके head की क्या position है, आपकी legs किस तरह से हैं, that is your posture. अब posture जो है it gives the impression of authority and confidence. अगर आप सही से खड़े हों, अगर आप stooping way में खड़े हों, बिल्कुल ऐसे अपने arms fold करके खड़े हों या आपका सर नीचे हो, आप नीचे देख रहे हों, तो उससे आपकी confusion या आपका कोई fear जो है वो appear हो रहा होता है. ठीक है? So a natural straight open body position is best. Open body position, आपने arms cross ना किए हों, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खींच के हाथ पीछे ना बांधे हों, या आप fidgeting ना कर रहे हों, पेन से ना खेल रहे हों. Open body कि you're confident, you're using your hands, you're showing the palms of your hands when you're speaking. ये आपका open body position होगी. Plus इसके साथ साथ eye contact भी important होता है, लेकिन वो अब आगे आएगा. If you're not accustomed to standing straight, you can practice by pressing your spine against a wall. So stand with your back to a wall और अपने spine को, shoulders को wall के साथ press करें, जरा सा आपका posture better होगा. Let your arms rest in a relaxed way at your sides so you don't appear stiff or rigid. अब आप सीधे खड़े होंगे तो आपकी मुट्ठियां बनना हो, आपने मुक्के ना बनाए हों या आपकी उंगलियां जो हैं वो restless ना हो. Just keep your hands relaxed into the sides. Remember, the audience members want you to behave normally. ठीक है? तो इसमें क्या क्या नहीं करना? Avoid the following. Arms folded across your chest. That's closed. Arms clasped behind the back military style, which makes you appear too aloof. कि आपको तो परवाह ही नहीं है, जो पीछे हाथ बांध के खड़े हैं, इनको क्या परवाह है? Hands on hips. ये confrontational या बहुत ही जिस तरह aunties वाला जैसे होता है, इसलिए कहा है appear too matronly. या कि आप डांटने लगे हैं किसी को, इस तरह से लगता है. Arms down the front, folded below the waist. तो ऐसे जैसे आप मिन्नत समाजत करने के लिए खड़े हैं, बड़ा जी गुडी गुडी के, हाँ अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, वो कोई गुजारिश करने के लिए खड़े हैं. या रॉकिंग बैक एंड फोर्थ, जैसे आप लोग कई दफा आगे पीछे झूल रहे होते हैं कि आगे पंजों पे, पीछे एड़ियों पे, पंजों पे एड़ियों पे. दैट्स नॉट अ गुड ओपन बॉडी पोस्चर. ठीक है? सो व्हाट यू नीड टू डू इज स्टैंड स्ट्रेट. अपने हाथ लूजली आप यूज करें, साइड्स पे आपके हों, मुट्ठी बंद ना हो, पीछे ना बांधे हों. एंड अब जिस तरह से नॉर्मल आप कहीं खड़े होंगे विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ टेंशन, वो आपका बेस्ट पोस्चर है. तो लुक एट इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर कि आपका कौन सा बेस्ट पोस्चर है. कॉन्शियस हो कि आपके सारे बॉडी पार्ट्स किधर किधर होते हैं व्हेन यू आर इन दैट रिलैक्स पोस्चर. एंड व्हेन यू आर नेक्स्ट टाइम गिविंग अ प्रेजेंटेशन, अपने बॉडी पार्ट्स को उसी तरह से अरेंज और सेट करके खड़े. ठीक है? अब जेस्चर्स किस किस्म के हों? मुक्के बना बना के हवा में लहराएं तकरीर करते हुए, या कोई रूड सिग्नल्स बनाएं? नो. तो आपके जेस्चर्स और आपके हाथ और आपके सर का हिलना, ये सब कुछ जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और क्या करना है आपने? अवॉइड पुटिंग योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स. जिस तरह से हाथ पीछे नहीं बांधने, उस तरह से पीछे पॉकेट्स में भी नहीं डालने. जिगलिंग योर कीज और अदर आइटम्स इन योर पॉकेट, या आपने मोबाइल फोन रखा हो हाथ में, फिजिट कर रहे हो आप इस तरह से, नहीं, ये भी नहीं कि छन कर रहे हैं, या आपने कंधे पे पर्स पहना हुआ उसके स्ट्रैप से खेले जा रहे हैं, नहीं. प्लेइंग विद योर ज्वेलरी, योर हेयर और योर क्लोथिंग विद सिग्नल्स दैट यू आर नर्वस. ठीक है? पुशिंग योर ग्लासेस बैक कॉन्स्टेंटली, बार बार या तो अपने बालों को या अपने आगे जिस तरह का हेयर स्टाइल है उसको एडजस्ट कर रहे हैं, या ग्लासेस को छेड़ रहे हैं. और फिर
Spotting a hairstyle that covers your eyes. This is very bad. आपके लिए भी, आपकी eyesight के लिए भी बुरा है, और आपके audience को भी आपके साथ eye contact maintain रखने में बहुत बुरा होगा. Clicking your ballpoint pen. This is a very irritating habit, especially when you're sitting in lectures too, that you're constantly paying tick, 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 tick हो रही है. And it also shows that you're not paying full attention to what is being said. Taking the caps on and off your pen or marker, scratching your face. अब आपको समझ आ गई. नीचे क्या है? Tapping your feet or bouncing your legs. Again, एक टांग हिला रहे होते हैं. पता है ना आपको, ये वाला भी जेस्चर, खड़े होकर भी आप इस तरह के काम कर रहे होते हैं. सो यू हैव टू अवॉइड दिस. जेस्चर्स किस तरह के होने चाहिए? पॉजिटिव. इस तरह के जेस्चर्स के जो आपके पैगाम को या जो आप बोल रहे हैं उसको एम्फसाइज करें. जो कुछ भी इसके अलावा है वो आपने अवॉइड करना. देन वॉकिंग पैटर्न्स किस तरह के होने चाहिए? क्लासरूम के या उसके लेक्चर थिएटर के एक साइड से दूसरे साइड तक कांस्टेंट फिरते रहे, टक 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 टक. क्या इस तरह का वॉकिंग पैटर्न होना चाहिए? नो. What you need to do is कि आपकी controlled walking हो. ठीक है? वो किस तरह की होती है? When you're saying one phrase, तो 2 कदम 3 कदम एक तरफ को आप लेफ्ट साइड पे चलें, then you come back to the middle, फिर आप 2 कदम 3 कदम दूसरी साइड पे जाएं when you're making a new point. तो इस तरह से जरा ऑडियंस भी थोड़े engaged रहते हैं. ठीक है? Refocus होती है उनकी attention भी, और creates interest. और however make sure you move about in a relaxed natural way. ये नहीं कि टक 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 खड़े हो गए, टेंशन खड़े हैं, अब इंतजार कर रहे हैं मेरा ये पॉइंट खत्म हो तो मैं सेंटर में जाऊं, अगला पॉइंट शुरू हो तो मैं उधर जाऊं. नो, कीप योरसेल्फ वेरी रिलैक्स्ड कि जिस तरह से आप नॉर्मली खड़े बात कर रहे हैं, आप सोचें कि अच्छा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैफेटेरिया के साइड पर खड़ी होके कोई स्नैक खाते हुए जब बात कर रही हूँ, सो हाउ डू आई मूव अराउंड, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर आप चल रहे होते हैं. सो जस्ट कीप दोज थिंग्स इन माइंड कि आपकी जो रिलैक्स बॉडी पोजिशंस हैं, व्हेन यू आर इन योर एलिमेंट, व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो आगे से मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे और मैं यहाँ पे जो मर्जी बात कर लूँ, वो जो आपका स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड है ना, वो आपने प्रेजेंटेशंस में रखना है. अच्छा, यूजिंग अ पोडियम और अ लेक्टर्न. व्हाट इज अ लेक्टर्न? पोडियम, ये जो क्लासरूम में रोस्ट्रम हमारे पड़े होते हैं. ठीक है? इफ यू आर यूजिंग अ लेक्टर्न, इट्स अ गुड आइडिया टू होल्ड द साइड सो योर हैंड्स कैन बी सीन, बट नॉट ग्रिप देम. ये नहीं कि पकड़े कि हाय मैं पोडियम छोड़ दिया तो मैं कांपना शुरू हो जाऊंगी. Many presidents and prime ministers do the same. Hold the sides, but do not grasp them tightly as if you are scared. Feel free to gesture naturally. छोड़ भी दें, साइड पे भी हो जाएं, कभी-कभी पोडियम से हट भी जाएं. Step away from the lectern at times if you don't need your notes or your microphone. This will give a more relaxed feel to your presentation. लेकिन don't hide behind the podium. कई बार लड़कियां आपकी माशाल्लाह ऐसे भी होती हैं कि वो लेक्टर्न के ऊपर अपना लैपटॉप खोला होता है और उसके पीछे बिल्कुल छुपी होती हैं कि भाई हम अपनी प्रेजेंटेशन दें और सिर्फ हमारी आवाज आए और पता चले कि हम खड़े थे, बाकी हम नजर भी ना आए और हमसे कोई सवाल भी ना पूछे और कोई हमारी तरफ भी ना देखे. So you don't need to do that. You need to keep relaxed and you need to make eye contact with the audience and you need to make your presentation seem very interesting. ठीक है? अब इसमें बॉडी लैंग्वेज के बाद क्या आ रहा है? आपका फेस, फेशियल एक्सप्रेशंस. किस तरह से आप अपने फेस पे अपने फीचर्स को यूज कर रहे हैं. सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंटेन आई कांटेक्ट. आई कांटेक्ट ऐसे भी नहीं कि एक ही को देखते जाना है, या ऐसा भी नहीं कि आपकी नजर लेफ्ट राइट ऐसे घूम रही है कि हाय कोई मुझे बचा ले. नो, व्हाट डू यू नीड टू डू? Look at one person for a few seconds on the left side, look at another person for a few seconds in the middle, then on the right side. Usually एक S पैटर्न होता है. आप ऑडियंस की सबसे आखिरी लाइन से S शुरू करते हैं, राइट से लेफ्ट, फिर थोड़ा आगे आते हैं, फिर लेफ्ट से राइट, फिर आप थोड़ा आगे आते हैं फ्रंट लाइन की तरफ, फिर राइट से लेफ्ट, एक S बनाते हैं ऑडियंस के ऊपर जितने भी बैठे हों. तो इस तरह से सबको ये फील होता है कि आपने सबकी तरफ देखा. ठीक है? So this is usually a good sign. A sure sign of an inexperienced presenter is one who looks down at his notes all the time. या आपके cases में, if you look at the board of the slides all the time, or if your back is turned towards the audience, that is a bad sign and a sign of inexperience. Rather than protecting you, this habit signals a lack of confidence, fear of the audience, or lack of familiarity with your information. This is the last point is very bad, especially in the academic scenarios, because अगर आप प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर्ड होके ही नहीं आए और ये लग रहा है कि जी आप सिर्फ पढ़ रहे हैं या पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो दिस क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन. आपको आगे जाके इंशाल्लाह अपनी हायर स्टडीज में अपने थीसिस के लिए भी आपको डिफेंस वगैरह में खड़ा होना पड़ेगा, अपने थीसिस को प्रेजेंट करना होगा. सो यू हैव टू सीम कन्विंसिंग एंड यू हैव टू शो दैट यू ऑलरेडी नो द मटीरियल. फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हों? आंखें बंद नहीं करनी, आपने फ्राउनिंग नहीं करनी, आपने बहुत कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस नहीं देने, आपने इनअप्रोप्रिएट
जो है अपने माउथ से इंप्रेशन नहीं करेगा जी, वहां खड़े होकर आप जबान चढ़ा रहे हैं या फजूल में ग्रेनिंग कर रहे हैं या आपके दांत ही निकले हुए हैं तो कहें पता नहीं आपको किस चीज की खुशी, तो यू कैन give a small smile. It should be very natural so that the audience smile back at you, but you need to be very confident, very sincere when you do this. So just read this on your own, and let's move on to your voice. अब वॉइस कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए कि लगे या तो आप बहुत शाउटिंग कर रहे हैं, या आप विस्परिंग कर रहे हैं, या आप स्टटरिंग कर रहे हैं, या आप बार बार रुक रहे हैं, या गला साफ कर रहे हैं, या बार बार पानी पी रहे हैं. तो ये सब चीजें जो हैं वो आपकी उसको अफेक्ट करेंगी. या फिर आप ये कि खास तौर पे अपना एक्सेंट भी जो है, कभी कभी मैंने देखा है कि प्रेजेंटेशन में यू ट्राई टू कॉपी सम अदर एक्सेंट व्हिच इज नॉट नेचुरली योर्स, सो दैट इज नॉट गुड. जो आपका नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग है उसमें आप बोलें, हाँ स्पीक अप इतना कि आपके ऑडियंस के पिछले लोगों तक भी आपकी सारी आवाज चली जाए, मगर इतना नहीं कि आप इतना ज्यादा चीख रहे हो कि थोड़ी देर बाद आपको खांसी आ जाए या आपकी आवाज फट जाए या आपकी आवाज जो है वो एक चीख में बदल जाए. ठीक है. So if this is the case और formal occasion है, you can request कि आपको माइक या स्पीकर वो दे दिया जाए, माइक्रोफोन दे दिया जाए. ब्रीथ नॉर्मली, बहुत तेज तेज भी नहीं बोलना. अगर आप बहुत तेज तेज बोलेंगे आपकी पिच, आपकी टोन, हर चीज इफेक्ट होगी. फिर इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी या इसमें आपको रुकना भी पड़ेगा और ये सारे ऑडियंस जो हैं वो भी आपके साथ अजीब सा एक फील करेंगे कि पता नहीं क्या परेशानी है. ठीक है. पॉज बिटवीन सेंटेंसेस, पॉज बिटवीन सेक्शंस. उस पॉज में अपने आप को आप जरा दोबारा से गैदर कर लें, अपनी थॉट्स को सीधा कर लें. Pause between slides. Doing this will not just give you time to breathe, but also provide a nice break for the audience to digest what you are saying. Okay. Then use good diction. आपके word choices और the way you say them दोनों से ठीक होना चाहिए. Clearly बोला करें हर चीज. Don't mumble or speak too fast. आप जिस तरह can you pronounce it clearly, इसकी समझ नहीं आएगी. या फिर आप मम्बल करेंगे, मुंह में बोल दिया और इसकी भी समझ नहीं आएगी. ठीक है. A common problem of native English speakers, even at international conferences, is that they presume everyone can understand them. वो अपनी स्पीड पे बोलते हैं और हम as a second language learners या non native speakers हम तो बड़ा खास ध्यान देते हैं कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी फ्लुएंसी पे भी ध्यान देना चाहिए. ठीक है. Speak with variety and enthusiasm. अब एक ही मोनोटोन में आपने बात नहीं की, मोनोटोनस किस्म की स्पीच नहीं करनी. कभी उसमें कोई आप स्पीड ले आए, कभी टोन हाई कर लें, कभी लो कर लें, कभी कोई ह्यूमर ले आए. सो उन्होंने कहा है डिफरेंट प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करें. रीडिंग पोम्स वगैरह में खासतौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो जस्ट डू समथिंग, ऐड वैरायटी और उससे आपका भी इंथुजियाज्म शो हो. आप जो पॉइंट पे बात कर रहे हैं, आर्गुमेंटेशन पेश कर रहे हैं, उसमें भी आपका इंथुजियाज्म और आपकी कन्विक्शन शो हो रही हो, तो दैट विल हेल्प यू. देन एम्फसाइज प्रॉपर्ली. अब ये नीचे जुमले देखें. आई वर्क ऑन द वीकेंड, I work on the weekend. I work on the weekend. I work on the weekend. अब हर जुमले में according to different scenarios different चीज emphasize हो रही है. इसमें आप ये बता रहे हैं कि मैं काम करती हूँ और इसमें बता रहे हैं मैं काम करती हूँ कब? वीकेंड पे. तो emphasis जो है it creates a lot of clarity and understanding and comprehension increase कर देती हैं आपकी audience के. So you have to be very श्योर कि मैंने कौन से वर्ड्स जो है एम्फसाइज करने हैं. इवन आप अपनी स्लाइड्स में या अपने नोट्स में उनको आप अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें. दैट मे बी हेल्प यू. और फिर प्रैक्टिस करें. ठीक है. साउंड काम एंड फ्रेंडली. सो साउंड काम एंड फ्रेंडली में ये भी नहीं कि आपको कोई परेशानी है, आपकी वॉइस जो है इट शुड बी ऑन द नॉर्मल पिच ताकि क्लैरिटी से आपको कोई सुन सके और अंडरस्टैंड कर सके. और फिर ऐसी भी साउंड आपकी नहीं होनी चाहिए कि उसमें आपकी कोई एंगर या कोई अनोयंस हो या ये लगे कि आप जो अगले लोग बैठे हैं ऑडियंस उनको कुछ भी नहीं समझते, कॉन्डिसेंडिंग टोन हो आपकी. और खासतौर पे क्वेश्चन आंसर्स जब आप करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली एंड यू हैव टू सी एवरीथिंग फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. तो यहाँ पे नहीं आपकी कामनेस खासतौर पे आपकी नर्वसनेस को शो करने के लिए और आपके कॉन्फिडेंस को शो करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट रश. आपकी स्पीड बहुत तेज ना हो. जैसे इस वक्त वीडियो में आई थिंक मेरी थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है. वो इसलिए है कि ताकि आप लोगों को बहुत लंबी वीडियो ना सुननी पड़े और आप लोगों को बोरियत ना हो जाए. लेकिन इन प्रेजेंटेशंस यू नो दैट यू हैव 2 to 3 minutes हमारी एकेडमिक सेटिंग में, और मे बी इन फुल प्रेजेंटेशंस यू हैव 8 to 10 minutes and then some minutes for questioning and answering. तो उसमें आप pace yourself, take small pauses, rush ना करें, इतनी स्पीड में ना जाएं कि शुरू के पॉइंट समझ ना आए तो बाद के भी समझ ना आए उसकी बेसिस पे.
या जिस तरह की इंफोग्राफिक या डायग्राम आपने कोई प्रेजेंट की है वो आप तो उससे फेमिलियर हैं, आपको तो उसकी समझ आ जाएगी, लेकिन जिन्होंने पहली दफा देखी है दे नीड सम टाइम कि उसको देखें, समझ सकें। अगर आपने हैंड आउट दिए हैं और आप कहें कि जी ये पढ़ें और साथ साथ आप बोल भी रहे हों तो दैट इज रॉन्ग। आप अपनी जो है पढ़ने के लिए कुछ चीज़ दी है, आप फिर अपने पास टाइमर एक रखें, आप उनसे कहें कि जी 1 मिनट के लिए आप इस पैराग्राफ को पढ़ लें या आप 10 सेकेंड्स के लिए इस तस्वीर को देख लें, फिर उनको आप टाइम भी दें कि वो समझ जाएं। तो यहाँ पे डोंट रश इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अवॉइड क्रच वर्ड्स। क्रच वर्ड्स क्या होते हैं? जो फिलर्स आप यूज करते हैं, जैसे बेसिकली, एक्चुअली, एब्सोल्युटली, आई थिंक, इन रियलिटी, या इस तरह की चीज करते हैं। सो व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड और यू आर सर्चिंग फॉर योर नेक्स्ट वर्ड्स वेरी केयरफुली, तो दरम्यान में जो फिलर्स के तौर पे फालतू अल्फाज यूज करते हैं विच आर नॉट रियली रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन, वो आपको कम यूज करने चाहिए। जैसे आप लोगों में से कुछ की आदत है मीन्स कहते हैं, कि दिस मीन्स बार बार कहना है, या उर्दू में कहेंगे जी मतलब है, इसका मतलब यानी के बार बार इस्तेमाल करना। डोंट यूज देम। स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज यूज करें कि जो कॉन्वर्सेशनल हो और जो आप भी बोलते हुए कंफर्टेबल महसूस करें। इस तरह के वर्ड्स ना लाएं जिसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको ना आती हो, या जो स्पोकन फॉर्मेट में ओवर फॉर्मल लगें, या ऐसे लगें कि जी ये तो कॉन्वर्सेशन में कभी इस्तेमाल नहीं होते, या वो बोलते हुए आपकी जो है वो जबान उसमें लड़खड़ा जाए। ईट एंड ड्रिंक कॉन्शियसली। ईट तो कभी भी नहीं करना व्हेन यू आर डूइंग अ प्रेजेंटेशन। हम 10-15 मिनट के लिए आप रोक सकते हैं अपने खाने की तलब को, लेकिन यू कैन ड्रिंक, यू कैन टेक अ सिप, बट ऐसे सिप नहीं कि जी आप पूरी बोतल ही खत्म करें, या आप स्लर्पिंग करके पी रहे हो, या इतना कट करके पी रहे हो कि लगे कि जी आपका गला बंद है, आप नर्वस हुए में हैं, या आप बोतल को सही तरह से मैनेज ना करें, बहुत शोर करें, या इस तरह की फसी किस्म की बॉटल्स है, इस तरह की फसी किस्म की चीजें हों कि जी आपको 3-4 मिनट वो ड्रिंक में ही लग जाए। ठीक है। अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, चीज, चॉकलेट एंड आइसक्रीम और बटर। हाँ, दिस इज ऑल्सो बिफोर यू गो फॉर प्रेजेंटेशन। So before a presentation, if you eat and drink consciously, तो आपका गला नहीं सूखेगा या आपको खांसी नहीं आएगी. So make sure to have a small sip of room temperature water before your mouth feels dry during your presentation. You can also have plain warm water with a squeeze of lemon just to clear your throat. Avoid hot beverages like coffee, tea, or hot chocolate as they can lead to congestion and force you to have to clear your throat more often. गला आपका जो है बंद हो सकता है. कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं आपको, क्यों? इससे आपके वोकल कॉर्ड्स जो है वो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अकड़ाव पैदा हो जाता है. अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज, चॉकलेट, आइसक्रीम और बटर व्हिच कैन कोच योर वोकल कॉर्ड्स एंड अफेक्ट द क्लैरिटी ऑफ योर वॉइस. आपको हर प्रेजेंटेशन में हर 2 सेकंड बाद ये करेंगे तो प्रेजेंटेशन का मजा नहीं रहेगा. एक्सरसाइज योर वोकल कॉर्ड्स. वोकल कॉर्ड्स की एक्सरसाइजेस जो हैं वो डिफरेंट तरह की, आप अपने ब्रेथ को भी कंट्रोल करते हैं और आप अपनी आवाज को निकाल के या अंदर की तरफ इनहेल करके भी आप अपने वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स भी करते हैं, उनको एक्सरसाइज भी करते हैं. जैसे यूजुअली इस तरह की चंद साउंड्स जो हैं डिफरेंट पिच पे, यूट्यूब पे देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग वोकल कॉर्ड एक्सरसाइजेस की आपको मिलेगी वीडियोस, वो आप लोग फॉलो कर लें. और ब्रीदिंग से भी आप डीप ब्रेथ्स, डीप एक्सहेल्स वो आप करें तो उससे भी आपके वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स होते हैं, और जिस तरह की फिर आपकी साउंड क्वालिटी होती है वो भी उससे improve हो जाती है. So these are the different points in non-verbal communication, in improving the body language, in improving the way you speak, the way you use your face, the way you use your body, the way you stand, your posture, your gestures, which are very important to make your presentation very effective. ठीक है? So these are those points which I explained to you briefly and which you can read on your own. Video pause करें जिसके पास handouts नहीं हैं. Otherwise, my students have their handouts with them. You can read them and discuss any points which are confusing, and we can discuss them in the WhatsApp group. Take care, everyone. Assalamu alaikum.